Praise the Lord. I am Pastor K.S. Samuel from Bangalore. I serve the Lord along with Philadelphia Fellowship Churches, and I serve here as the Karnataka State Overseer. My acquaintance with Philadelphia Fellowship Churches has been for the past 3 decades. I know late Dr. Thomas Matthews so well and his family, people who've been so much encouraging and stood as a pillar for ministry. And also I want to thank God for Reverend Dr. Joy Punus and Paul Matthews and all other leaders who are tirelessly serving the Lord to see the gospel of Jesus Christ is reached to every villages of Indian Asian countries. And the reason why we minister and try to reach gospel to the villages and every nook and corner is not for any other purpose but a radical change in the lives of people. Today we know people live in such deprived situation, in discouragement, hopeless situation, and there is no hope for people around us. They look for peace or real meaning of life. But one thing, that is the life of Jesus Christ, divine life. Until and unless we meet with that divine life, we will never experience true life, true meaning of life and joy in each one of our lives. In order to every person to be in touch with God and also experience this powerful life, gospel, that's good news, that there is God's love for people, need to reach every nook and corner. Every people should be met with gospel. Every disciple is called to witness. Mandate. It's a mandate for every disciple to witness the experience, the joy, the peace, the life that one experience, one enjoy from Lord Jesus Christ. Now, the Bible speaks so clearly that we've been called to witness. The only purpose of living for a Christian is to share the love of God to people around. And today I just want you to read from Matthew chapter 28 verse 28. That's the last verses. Jesus, before leaving this earth, after completion of the mission that the Father God gave to him, he completed the mission, and as he go away, go to the Father, return to the Father, he gave a big commandment, a big ministry, a responsibility to his disciple. And he said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations. You know, Jesus says, all authority in heaven and on earth has been given to Jesus Christ. With that authority, now he's sending his disciples, entrusting the responsibility to the disciples that every disciple, every Christian should go to share the good news that Jesus Christ is life and there is only one hope for every human being, that is through Jesus Christ. Great news, good news. There is peace, there is hope, there is answer for every Christian. But Christian, every people, that every Christian have to go and declare this to the world. How do we go and share this good news? We know churches and Christians been here, and somehow they have taken a very different path, a very different mode of life.
They were actually handed over this ministry, this work of witnessing and sharing the good news to certain kind of people, maybe evangelists and pastors. But Jesus gave this responsibility to every disciple of Jesus Christ. How can they go? Before the ascension, Jesus Christ, if we read in Acts chapter 1, he says that you wait for the Holy Spirit. Before one go, one have to wait and be filled, energized, fueled with the Holy Spirit. Unless and until a person receives the power from above, he cannot witness. He cannot effectively witness. But once a person receives this power of the Holy Spirit, then he can effectively witness. For the first thing is you wait, receive, be filled with the Holy Spirit, receive the power. Receive the authority. I have been given authority. You wait, receive this authority and power or this Holy Spirit. Second, once you receive it, you are not supposed to sit back. You have to go. Jesus says, you go. All power and authority has been given to me. You go. When you go, along with you, great power and authority. With great power to do miracles. The same kind of power evangelism that Jesus did. Wherever Jesus went, along with his ministry and teaching, miracles followed. So a lot of signs followed. A lot of miraculous work followed. That's not because just to show the miracles. But he was actually teaching the disciples, when you go with the infilling of the Holy Spirit, the power of heaven will accompany you. So let me tell you, every believer is called to share the good news. And he has to go being filled with the Holy Spirit. And when he is filled with the Holy Spirit, there is power within him and along with him. And in Matthew chapter 28, again we see that you go and make disciples. Teach them to follow all that I commanded. Make disciples, which means reproduce. In the book of Genesis we see when God came and made the first man. What did he do? He made them. He made man in God's own image and likeness. Man was created like God. Now here we see Jesus sending his disciples and telling them, as the Father has sent me, I am sending you. Every Christian is to walk like Jesus walked. Is to talk like Jesus talked. We are called to dispel the darkness. We are called to bring in the light. We are called to break away every curses. We are called to bring in life. We are called to remove every injustice, every unrighteousness, and we are called to bring in peace, purity, love, grace to this world and completely transform this world. That is bringing God's rule, God's kingdom on earth. Today I just want to tell you that a great commission is given to us. A great mandate is given to us. We are not supposed to sit back. We have to go share gospel, good news, witness the power of salvation, power of life, power of forgiveness, power of love, and God's love to people. God so loved the world, so he gave his own son. Jesus Christ, God's own son, came to this world to save every human being. Give this good news to people around. Otherwise they die, go to hell. Now the Great Commission is in your hand and my hand.
Come, let's win the world for the Lord. May God bless us. Thank you so much for watching. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को प्रेमी सलाम। नवापुर के इस पावन अवसर के कन्वेंशन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हैं कि अपनी लड़ाई यहोवा को सौंप दो। गिव योर बैटल टू द लॉर्ड एंड लेट हिम फाइट फॉर यू। निर्गमन की पुस्तक के 14वें अध्याय में मूसा कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। निर्गमन 14:14, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हें चुप रहना है। हमारी लड़ाइयाँ हम नहीं लड़ते, हमारी लड़ाइयाँ परमेश्वर स्वयं हमारे लिए लड़ता है। अभी अभी कोविड-19 से बहुत बड़ा जंग खेलकर मैं बाहर निकल आया हूँ और परमेश्वर ने मुझे विजय दी, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं मेरे लिए लड़कर मुझे अनुग्रह प्रदान किया है और जय दी है। अपने आप को शांत रखना है। हमारा जीवन प्रियो आत्मिक युद्धों से भरा हुआ जीवन है। मसीही जीवन विश्वास का जंग। मसीही जीवन जीवन के हर क्षेत्र में जंग है, लड़ाई है, और ये आत्मिक लड़ाई है, शारीरिक लड़ाई नहीं है। इसलिए हमें अपने युद्ध को परमेश्वर को सौंपना होगा। मूसा ऐसा कहता है, होल्ड योर पीस, होल्ड योर पीस। तुम चुपचाप रहो, उसकी उपस्थिति में चुपचाप रहो। होल्ड योर पीस। भजन 37:7 में भी भजनकर्ता कहता है, यहोवा के सामने चुपचाप रह, क्योंकि he knows what to do and how to fight। यदि निर्गमन 14:24-25 में हम देखें तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जानता है हमारे लिए कैसे लड़ना। हमारे पास हमारी अपनी रणनीति नहीं होती। यदि हम अपनी रणनीति को अपनाने जाएंगे तो हम शायद शरीर के अनुसार चलकर थकित होकर हार जाएंगे। परमेश्वर जानता है हमारे युद्ध को। हमारे भीतर, हमारे आसपास, हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो संवेदनशील युद्ध चल रहा है, और प्रत्येक विश्वासी के जीवन में युद्ध है, इस युद्ध को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है उस युद्ध के विषय में क्या करना चाहिए। परमेश्वर जानता है उस युद्ध को कैसे लड़ना चाहिए। व्यवस्था विवरण 1:30 में लिखा है कि he will go before you and fight for you। परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे जाएगा और तुम्हारे लिए लड़ेगा। हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, सेनाओं का सरदार है। और निर्गमन 15:3 में लिखा है, यहोवा योद्धा है, परमेश्वर स्वयं योद्धा है। इसलिए प्रत्येक लड़ाई को किस प्रकार लड़कर जीतना, अपने लोगों को बचाना, अपने लोगों को विजय के उत्सव में ले जाना, वो परमेश्वर पिता अच्छी तरह जानता है। इसलिए वो हमारे आगे आगे जाता है और हमारे लिए लड़ता है। यहोशू की पुस्तक के 10वें अध्याय में यदि हम देखेंगे तो वहां जब ऐ की विरुद्ध के अंदर इस्राएल के लोग युद्ध करने गए, तब परमेश्वर ने प्राकृतिक अवस्था को अपने नियंत्रण में ले लिया। प्राकृतिक परिस्थिति को उसने प्रभावित कर दिया। सूर्य थम गया। परमेश्वर हमारे लिए प्राकृतिक परिस्थिति को भी अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकता है, और परमेश्वर उनको
शत्रुओं के उच्च स्थान पर ले गया। यहोशू 10:42 में लिखा है, possessing the high places of enemies। शत्रुओं के उच्च स्थान को सर करने के लिए, अपने कब्जे में लेने के लिए परमेश्वर उनके लिए लड़ा, उनके साथ रहा, प्राकृतिक अवस्था को बदल दिया। यहोशाफात राजा के समय भी एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय, उसमें समुद्र के उस पार से एक त्रिमुखी सेना यरूशलेम, यहूदा और यहोशाफात के विरुद्ध में आ गई। और वहां परमेश्वर ने कहा, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। दूसरा इतिहास 20:15 से 19 में एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा जब परमेश्वर के लोग नम्र होकर प्रार्थना करने लगे, तब परमेश्वर ने उनसे भविष्यद्वक्ता के द्वारा बातें की कि तुम्हें इस लड़ाई में लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई तो यहोवा ही की है। हमारी लड़ाई हमारी अपनी नहीं है, हमारी लड़ाई यहोवा की है और वो स्वयं लड़ेगा। निर्गमन में यदि हम वापस देखें तो 14 अध्याय के 13वें अध्याय में, 14 अध्याय के 13वें पद में मूसा अपने लोगों को, इस्राएलियों को कहता है, सी द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड। चुप रहो, चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर के कामों को देखो। हमें परमेश्वर के सम्मुख चुप रहना है और परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। जीवन की हर जंग में हम अकेले नहीं लड़ सकते, हम थकित हो जाएंगे। इसलिए हमारी लड़ाई परमेश्वर अपने हाथ में देता है। अपने इच्छानुसार परमेश्वर अपने योद्धाओं के रूप में भी उपयोग में ला सकता है हमें। उसमें परमेश्वर की अपनी रणनीति है। आत्मिक युद्ध में आत्मिक रणनीति, आत्मिक युद्ध को शारीरिक प्रणाली के अनुसार नहीं लड़ा जाता। आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए आत्मिक प्रणाली चाहिए। आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए परमेश्वर के वचन पर आधारित आत्मिक प्रकाशन चाहिए। आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए आत्मिक हथियार चाहिए। आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए आत्मिक समझ चाहिए। आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए परमेश्वर की ओर से एक नई बुद्धि और ज्ञान चाहिए। आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए एक नया अभिषेक चाहिए, नया बल चाहिए। हर समय नया और ताजा अभिषेक चाहिए। इसलिए हमारी लड़ाई यहोवा लड़ता है। जीवन में जब भीषण अवस्था आई हो, हम निराश हो जाए, थकित हो जाए, उस समय एक बात को स्मरण रखना, यह समय आया है कि मैं अपने युद्ध को परमेश्वर के हाथों में दो दूंगा। यहोवा तुम्हारे माटे, तुम्हारे लिए लड़ेगा। काफी बीमारी में से खड़ा हुआ हूं मैं, बहुत ही कमजोर, पर तो परमेश्वर अनुग्रह मुझे दे रहा है। परमेश्वर स्वयं हमारे लिए लड़ता है। वो अपने शत्रुओं का न्याय कर सकता है। वो अपने शत्रुओं को दंडित कर सकता है। इसलिए अपने युद्ध को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। परमेश्वर के सामने शांत रहना बहुत बड़ी बात है। कुछ बोलना की इच्छा होती है, बहुत सारे विचार खड़े होते हैं, हम अपने आप के काबू में नहीं रह पाते हैं। ऐसे समय हमें परमेश्वर के सामने शांत होने की आवश्यकता है, चुपचाप होने की आवश्यकता है। परमेश्वर के सामने चुपचाप रहना भी एक वरदान है। परमेश्वर के सामने हमें चुपचाप रहना है,
और वो हमारे लिए लड़ेगा और हमें जय देगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में फिलाडेल्फिया फेलोशिप के सारे अगुओं को प्रेज़ द लॉर्ड और फिलाडेल्फिया परिवार को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का अनुग्रह से मुझे उड़ीसा में सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। मेरा नाम पास्टर पवित्र मोहन गुलाब। मैं 89 से लेकर के करीबन 30 साल हुआ फिलाडेल्फिया के साथ जुड़कर सेवकाई करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया और आज फिलाडेल्फिया फेलोशिप में एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर के तौर पर सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर ने आज तक विश्वास योग्यता के साथ फिलाडेल्फिया फेलोशिप के साथ जुड़कर काम करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं और हमारा फिलाडेल्फिया फेलोशिप के फाउंडर साहब डॉक्टर थॉमस मैथ्यूस के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सेवकाई के लिए उनका जीवन के द्वारा, उनका चाल चलन के द्वारा, उनका समर्पित जीवन और सच्चाई के साथ सेवा करने का जो आदर्श जीवन मुझे सेवकाई में आगे बढ़ने में सहायता किया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और मैं परमेश्वर पिता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर पिता ने 30 साल का सेवकाई में मुझे एक बात को प्रभु का दास डॉक्टर थॉमस मैथ्यूस के द्वारा मुझे प्रेरणा मिली कि प्रभु का दास एक सीधा मन से सच्चाई के साथ लव रहित जीवन के साथ प्रभु का सेवकाई किया और कभी भी सेवकाई को मेरा कलीसिया, मेरा सेवा कभी नहीं बोले और हर समय हमको उत्साहित किए कि कलीसिया प्रभु का है और प्रभु का सेवा को आगे बढ़ाना है। उनका जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य था। उनका जीवन शैली और उनका जीवन सेवकाई की जो यात्रा में उनसे हम जो सीखा, उसके द्वारा प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु आज तक हमको स्थिरता से बढ़ने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर पिता ने आज से करीब 30 साल तक विश्वास योग्यता के साथ प्रभु का सेवा करने के लिए मौका दिया। मैं इसलिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और हमारा सारे अगुओं के जीवन शैली को जब हम देखते हैं और उनका जीवन का शैली के द्वारा, उनका सेवकाई का जो आदर्श जीवन के द्वारा प्रभु ने हमको और भी सेवा में बढ़ने के लिए प्रभु ने मौका दिया। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज मैं परमेश्वर का वचन से जो प्रभु मेरा दिल में डाला है, उस वचन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो कि प्रेरितों के काम उसका 8:21 वचन में इस प्रकार लिखा है, इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। इन वचन के द्वारा हमें प्रभु का सेवकाई में किस ढंग से, किस तरीका से हमको प्रभु का सेवा करना है, इस बात को पवित्र आत्मा हमको सिखाना चाहता है। प्रभु का सेवकाई के लिए एक सीधा मन की आवश्यकता है। जितने प्रभु का दास लोग प्रभु का सेवा में आगे बढ़े, उनका सबसे पहले उनका मन का सीधाई के द्वारा प्रभु का सेवा की, जिसके फल स्वरूप परमेश्वर उनको आशीष दी और प्रभु का राज्य का बढ़ती हुआ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि जब प्रभु का दास पतरस और यूहन्ना जब
लोगों के ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना किया, लोगों ने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को प्राप्त किया। उस समय जादूगर सेमन वो पैसा फेंक करके, पैसा दे करके उस सामर्थ्य को खरीदने के लिए कोशिश किया। कभी भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पैसा से खरीदा नहीं जा सकता। परमेश्वर ऐसे लोगों को सेवकाई में लेता है जो प्रभु यीशु मसीह की सहकर्मी बनकर के, प्रभु यीशु मसीह ने जो नींव डाला है उसी नींव के ऊपर जो सिर का प्रधान या सर्वश्रेष्ठ यीशु मसीह है, उसका आदर्श जीवन लेकर के हमें सेवा करना होगा। यहां पर हम देखते हैं जादूगर सेमन, वो अपना हृदय में बिटरनेस से भरा हुआ था, तिक्तता से भरा हुआ था, कड़वाहट से भरा हुआ था और उस सामर्थ्य को पाने के लिए वो कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारों, आज हमें इस बात को महसूस करें, जाने कि परमेश्वर हमारा दिल को जानता है, हम क्या सोचते हैं, हमारा विचार को जानता है। इसलिए हमें एक सिद्धांत की जरूरत है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का अनुग्रह से हमें उस सेवकाई को, प्रभु के राज्यों को बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा एक अच्छा रिश्ता अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य का निर्माण हेतु राजा के साथ हमारा रिश्ता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सब कुछ उसी से प्रारंभ होता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने जो सेवकाई प्रभु हमें दी है, हमको सीधा मन से सच्चाई के साथ हमें करना है। प्रभु हमको जिस सेवकाई के लिए बुलाया, उस सेवा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन में एक ही मकसद होना चाहिए कि मैं परमेश्वर का राज्य को विस्तार हेतु मेरा जीवन को मैं समर्पण करूं, और मेरा उद्देश्य कोई लाभ के लिए नहीं, मेरा उद्देश्य कोई स्वार्थ के लिए नहीं, क्योंकि कलीसिया प्रभु का है और मैं प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी सेवक हूं। और जो नींव प्रभु यीशु मसीह ने डाला है, उसी नींव के ऊपर एक निर्माता के रूप में परमेश्वर ने मुझे आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह देता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं क्योंकि प्रभु आज तक मुझे जो सेवकाई दिया, उस सेवकाई में आगे बढ़ने का एक ही मकसद है कि परमेश्वर जो सेवकाई दिया है, वो सेवा मेरा नहीं है, वो सेवा प्रभु का है। कलीसिया मेरा नहीं है, प्रभु का है। सारे महिमा केवल परमेश्वर को मिलना चाहिए, क्योंकि मत्ती 6:13 में लिखा है, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है। राज्य का निर्माण करने वाले के रूप में हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, केवल परमेश्वर को महिमा करना है। प्रभु का धन्यवाद हो जब हम सच्चाई के साथ, ईमानदार के साथ प्रभु का सेवा करेंगे, परमेश्वर सेवा क्षेत्र में हमको बहुत ऐसे आशीष देगा। परमेश्वर एक सच्चा दिल को प्रभु चाहता है। प्रभु एक सरल व्यक्ति को प्रभु चाहता है, जो सच्चाई से परमेश्वर के सामने जो जी सके, ऐसा व्यक्ति को प्रभु चाहता है। और परमेश्वर उन व्यक्ति को परमेश्वर का आत्मा का दान वरदान देकर के प्रभु उनका राज्यों को बढ़ाने के लिए प्रभु हमको संपूर्ण रूप से व्यवहार करता है। ये हमारा बलबूत पर आधारित नहीं है, ये प्रभु का अनुग्रह से और उनका आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमें प्रभु का सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए
प्रभु हमें मदद करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस 30 साल की सेवकाई के दौरान मैं प्रभु यीशु मसीह जो सेवकाई दिए हैं, उस सेवकाई में मेरा एक ही उद्देश्य है कि प्रभु का राज्य बढ़े, प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु का राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु मेरे जीवन में जो भी समय प्रभु ने दिया है उस समय को प्रभु के लिए इस्तेमाल करूं, ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा मकसद है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि जो सेवकाई प्रभु ने मुझे दिया है, जो लोगों से महिमा मुझे पाने के लिए नहीं, लोगों को प्रशंसा पाने के लिए नहीं, सारे महिमा मेरे सेवकाई के द्वारा यीशु मसीह को मिलना चाहिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मेरे सारे अगुवों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, विशेष करके फिलाडेल्फिया के फाउंडर साहब के लिए धन्यवाद देता हूं, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू जी के लिए, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु का सेवकाई के लिए समर्पित कर दिए थे और उनका जीवन में कोई भी लोभ नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। उनका जीवन शैली को जब हम देखा, मैंने देखा, उनका जीवन शैली मुझे प्रभावित किया कि प्रभु का सेवकाई में हम किस प्रकार आगे बढ़ना है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह से हमें ऐसा एक बहुमूल्य सेवा प्रभु ने हमको दिया है। इस सेवा को अपना नहीं समझना है, ये सेवा प्रभु का है और सारा महिमा प्रभु को मिले। और इसमें हम जब प्रभु का वचन से हम तुम देखे हैं कि समून ने क्या सोचा कि प्रभु का सामर्थ को लेकर के अपना नाम कमाने के लिए, और जिस सामर्थ्य से वो लोग काम कर रहे हैं उसमें उसका स्वार्थ के लिए जो चिंताधारा था, वो चिंताधारा हमें कभी भी ना आने पाए। और सेवकाई में हमको आगे बढ़ने में एक बात हमें आगे ले जा सकता है, वो है एक सरल हृदय, एक सीधा मन से जब हम प्रभु का सेवकाई करेंगे, जब दूसरे लोग प्रभु का सेवकाई में बढ़ते हैं, दूसरे लोग जब उन्नति करते हैं, हमारे अंदर कोई भी बिटरनेस ना रहने पाए। जब बिटरनेस से हम भर जाते हैं, प्रभु का सेवकाई रुकावट हो जाता है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर पिता ने आज तक प्रभु हमको संभाला और परमेश्वर ने जो सेवकाई दी, उस सेवकाई में विश्वास योग्यता के साथ प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और विशेष करके फिलाडेल्फिया फेलोशिप के सारे अगुवों को मैं धन्यवाद देता हूं। पास्टर पॉल साहब के लिए धन्यवाद देता हूं, फिनिश साहब के लिए धन्यवाद देता हूं, जयपुर साहब के लिए धन्यवाद देता हूं, हमारा फाउंडर साहब डॉक्टर थॉमस मैथ्यू जी के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उनका सिद्धाई मन से जो प्रभु का सेवकाई किया और बिना स्वार्थ से प्रभु का सेवकाई किया और कलीसिया को, मंडली को और सेवा को अपना नहीं समझा, वो सारा प्रभु का है। इस बात को जब उन्होंने अपना जीवन काल में अपना सेवा को पूरा किया, वही सेवा उनका जीवन के द्वारा हमें भी उस प्रकार बढ़ने के लिए प्रभु ने मौका दिया। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। पिछले 20 साल से फिलाडेल्फिया फेलोशिप से जो सहायता राशि मिलता था, वो भी बंद होने के बाद भी परमेश्वर ने जो बिना स्वार्थ से सेवकाई करने के लिए प्रभु ने हमको जो मौका दिया और प्रभु का आशीष हम पर रहा, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज का दिन हमें एक निष्कपट हृदय से, एक सरल दिल से और सिधाई मन से प्रभु का सेवा करना होगा। और जब सेवकाई में हमारा भाई लोग बढ़ते हैं, दूसरे लोग बढ़ते हैं, तो हमको बिटरनेस नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं होना है, हम उनके लिए प्रार्थना करना है, हमें खुश होना है। इस बात को हमें सदैव ध्यान रख करके काम करना है, क्योंकि औरों का बढ़ती हमारा बढ़ती है प्रभु का सेवा को बढ़ाने के लिए। और जब दूसरे का उन्नति होता है, हम खुश होकर के हम आगे बढ़े, प्रभु ये हमसे चाहता है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। इस 30 साल का सेवकाई में प्रभु ने हमको विश्वास योग्यता के साथ, जो सिधाई मन से जो प्रभु का दास लोग इस सेवा को अंजाम दिए, फिलाडेल्फिया फेलोशिप को,
उनका आदर्श जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मैं इसलिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज मेरे प्यारों, जो समान जादूगर जिस दिल से, जिस मकसद से वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को खरीदना चाहता था, उस प्रकार दिल हम ना रखें, दूसरे के प्रति कड़वाहट ना रखें, हम ईर्ष्यान्वित ना हो। हम प्रभु यीशु मसीह को दिल लेकर के, यीशु मसीह का मन लेकर के, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो नेप डाला है, उसी नेप में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको मदद करे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने इस सेवकाई को परमेश्वर जो सिधाई मन से प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु ने मौका दिया, और इस 30 साल में बहुत सारे कलीसिया को निर्माण करने के लिए, बहुत लोगों को प्रभु में लाने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और मेरे सारे अगुवों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने संपूर्ण जीवन प्रभु का सेवा के लिए समर्पण किया, और उनका आदर्श जीवन आज मुझे सेवकाई में सफलता पाने के लिए मदद कर रहा है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और सारे अगुवों को मैं दुआ में स्मरण करता हूँ, और मेरे लिए प्रार्थना करें, उड़ीसा का सेवकाई के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु एक सिधाई मन से प्रभु का सेवा को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हमें सहायता करे, और हम कभी भी सेवकाई में तिक्त भरा दिल, एक कड़वाहट दिल के साथ प्रभु का सेवा ना करें। प्रभु का आत्मा हमें इस बात को सिखाता है। हम दूसरों को प्रोत्साहित करें, हम दूसरों को उन्नति के लिए प्रार्थना करें, और जो प्रभु में बढ़ते हैं उसके लिए हम आनंदित रहे, इस बात को सीखे। क्योंकि परमेश्वर एक सिधाई मन को प्रभु चाहता है, एक सरल मन को प्रभु चाहता है, और सरल मन जो रखते हैं, जो सिधाई मन रख कर प्रभु का सेवा करते हैं, प्रभु उनको आशीष देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे एक छोटा सा मेरा गवाही के साथ इस वचन को बांटने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और इस वचन के साथ मैं सारे अगुवों को, सारे फिलाडेल्फिया के फेलोशिप के सदस्यों को, कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ। आमीन।